علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرت العلامہ حافظ قاری محمد زکریا بھائی ابھی جو آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد اطہر رضوی، اور اس کے علاوہ سابقہ کونسلر صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور اس درگاہ کی خدمت کرنے والے سجادگان ہوں یا متولیان اکرام ہوں، حاضرین سنی اجتماع، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج اس نے آپ کو اور ہم سب کو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں سڑکوں پہ نہیں، کٹوں پر نہیں، آٹو میں نہیں، گارڈن میں نہیں، بلکہ شیخ جلال الدین کی درگاہ کے سامنے بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ لوگ ہاسپٹلوں کے بیڈ پہ پڑے، بچے بڑے تھوڑی دیر گڑبڑ نہ کریں، سائلنٹ بیٹھے، جو بچوں کو جانا ہے ابھی سے جا سکتے، بیچ میں مت اٹھو، 1 گھنٹہ یا نہیں تو 50 منٹ آپ صبر کیجئے۔ اس کے بعد تو آپ کو روز پکارنا ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے، بھاگنا روز لگا۔ سوچے آج ایک دن بھاگنا نہیں ہے، کب تک بھاگو گے؟ اب بیٹھنا ہے، لوگ تمہیں دیکھ کر بھاگنا ہے۔ ارے بولو جی سبحان اللہ۔ تمہارے جذبے کو دیکھ کر لوگ بھاگنا ہے کہ اب ادونی میں خونی محلے میں رہنے والے کے خون میں ہر ذرے میں عشق رسول نظر آ رہا ہے، عشق اولیاء نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز، یہ جذبہ دکھاتے ہوئے آپ کو پورا سلام یہ تک ہلنا نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی بالکل سائلنٹ ہو جائیں، اور مرد حضرات بھی خاموشی کے ساتھ جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس پیغام کو سن کر اپنے دل میں بٹھا کر کل سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم اور آپ جس ولی کے عرس کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، ان اللہ والوں کے دربار میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کا عرس منانے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی چوکٹ پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ آؤ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی ایک فضیلت رکھوں۔ وہ اس ولی کے عرس کے موقع پر ایک اللہ والی سے، ایک اللہ والے سے ریلیٹڈ ہے یہ واقعہ۔ اسی ریلیٹڈ واقعے کو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ تمام ولیوں کے امام کہہ دیجئے، تمام ولیوں کے سردار کہہ دیجئے، تو بھی کم نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ کوئی اور ولی نہیں بلکہ خواجہ حسن بصری ہے، جو مولا علی کے خلیفہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی، بابا میری بیٹی مر کر کئی دن ہو گئے، وہ کس حالت میں ہے خبر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے، رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھ لینا، درود پڑھتے پڑھتے سو جانا، اللہ تیری بچی کے حالات تجھے خواب میں دکھا دے گا۔ ماں حسن بصری کے خانخواہ سے نکلتی ہے، اپنے گھر روانہ ہوتی ہے۔ گھر جب پہنچی، رات میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 4 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے۔ درود پڑھتے پڑھتے وہ مائیں سو جاتی ہے۔ آنکھ لگنا تھا، ماں نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ماں نے بیٹی کو خواب میں کیسے دیکھا؟ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، دوزخ کے فرشتے سے مار رہے ہیں، آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، آگ کی زنجیریں جسم پہ ڈالی گئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا، ماں نے اپنی بیٹی کے بدن میں آگ کی زنجیروں کو دیکھا۔ ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، ہر ماں اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے پیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے جب بیٹی کو جلتے ہوئے آگ میں دیکھا، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد صبح پھر وہ ولی کی خانقاہ میں پہنچتی ہے، رات میں جو منظر اس نے خواب میں دیکھا وہ سب سنا دیتی ہے۔ بابا میری بیٹی آگ میں جل رہی ہے، میری بیٹی کے بدن پہ آگ کا لباس ہے، میری بیٹی کے
बाप कहते हैं जा तेरी बेटी के नाम पे कुछ खैरात कर, कुछ सदका दे दे, मेरा मौला चाहे तो तेरी बेटी के कब्र से आजाद उठा देगा। अब वो बूढ़ी औरत वहां से निकल पड़ती है। हसन बसरी अपनी खानका में टहलते टहलते एक पिल्लर को टेक लगाकर आप बैठे हैं, आपकी आंख लगी, जैसे आंख लगना था, आपकी आंख लगते ही आपने क्या देखा, जो बच्ची की माँ अभी अभी आई थी उसी की बेटी को उन्होंने ख्वाब में देखा। वो जन्नत के तख्त पे बैठी है, जन्नत का लिबास पहनी हुई है, जन्नती ताज उसके सर पे है। हसन बसरी उसे ताज्जुब से देख रहे थे। वो लड़की कहने लगी आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे पहचानते नहीं, अभी जो मेरी माँ तुम्हारे पास आई थी मैं उसी की बेटी हूँ। हजरत हसन बसरी ने कहा तेरी माँ ने तो कहा कि तू दोज़ख में जल रही है, तेरी माँ ने तो कहा कि तू जहन्नम में जल रही है, तेरे बदन पर आग का लिबास है, मगर तू जन्नत में कैसे आ गई? मैं देख रहा हूं तू जन्नती तख्त पे बैठी है, तेरे सर पे जन्नती ताज है, ये चेंजेस कैसे आ गए? वो लड़की ने क्या जवाब दिया मेरी बहनें गौर से सुने, मेरे भाई गौर से सुने। उस लड़की ने कहा मेरी माँ ने जो कहा वो भी सच है और जो तुम देख रहे हो ये भी सच है। दरअसल मैं दोज़ख में जल रही थी, मगर जिस कब्रिस्तान में मुझे दफन कर दिया गया उस कब्रिस्तान के बाजू से एक आशिक रसूल का गुजर हुआ, वो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता हुआ गया। अल्लाह उस दरूद के सदके में 500 खबरों से आजाद उठाकर जन्नत अता फरमा दिया है, जन्नत अता फरमा दिया है। ऐ सरकारे मदीना के दीवाने, दरूद कोई और पढ़ रहा है, अल्लाह बख्शिश किसी और की कर रहा है। अगर दरूद शरीफ पढ़ने वाला खुद भी मर जाए तो यकीनन अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देता है। इसीलिए हम दरूद शरीफ पढ़ाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से अगर जहन्नमी है तो जन्नती बन जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से अगर हमारा खबर का गला गुनाहों की वजह से जहन्नम का गला बन गया तो फिर दरूद पढ़ने वाला मर जाता है तो उसका वो गला जन्नत के बागों में से बाग बन जाता है। अपने आप को ये तय कर लो कि दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो। मेरी बहनों, दरूद शरीफ चेहरे पे रौनक दिलाता है। दुरूद पाक इंसान के सीने को मदीना बनाता है। दुरूद पाक इंसान के कल्ब को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह तंगदस्ती को दूर करता है, गुर्बत को खत्म कर देता है, इफलासी को खत्म कर देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह के हबीब का दीदार भी हो जाता है, नबी का दीदार भी होता है। आओ आज हमारी बहनें शिकायत करती है हमारे सर से खर्जे का बोझ नहीं उतरता, हमारे लोग शिकायत करते हैं हमें काम नहीं मिल रहा है, काम मिले तो रोजी में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, मकान में बरकत नहीं। बेबरकती की शिकायत करने वालों दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाले बन जाओ, अल्लाह रिस्क में भी बरकत देगा, मकान में भी बरकत देगा, रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो 1 हज का सवाब है, 2 बार बोले तो 2 हज का सवाब है। तो जितनी बार बोलेंगे ये जो सवाब है ना, ये नेकियां अब नहीं दिखती, जिस्म से रूह निकलने के बाद खबर के गड़े में डालते ना तब नेकियों का अंदाजा होगा। उस वक्त पछताने से कुछ भी काम नहीं चलेगा। अभी अल्लाह ने जिंदगी दी है तो हजरत शेख जलालुद्दीन सिद्दीकी कादरी की बारगाह में आए हो तो यहां से ये पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह कल का जो सूरज अदोनी का निकलेगा अब मेरी जिंदगी में इनकलाब लेकर आएगा, अब मेरी जिंदगी में चेंजेस लाएगा। आज हमको ये इरादा करके यहां से उठना है। हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं? ये जलसा, ये प्रोग्राम, इसका कनेक्शन पार्लियामेंट से नहीं, असेंबली से नहीं, इसका कनेक्शन अगर किसी से है तो किसी और से नहीं, बल्कि ये जो सीधा ताल्लुक है तो गौसे आजम से है, ये गरीब नवाज से है, ये तो अल्लाह वालों से है। हमारा जो इस जलसे का ताल्लुक है
शेख जलालुद्दीन सिद्दीकी की बारगाह से है। इन अल्लाह वालों की चौखट पर जाने के फायदे क्या है, ये भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। औलिया इकराम की शान सबसे आला है। अल्लाह वालों से दुश्मनी मत करना, अल्लाह वालों को अपनी तरह कभी मत समझना, औलिया इकराम को आम इंसानों से कंपेयर मत करना। वली की खबर को देखकर ये मिट्टी का ढेर मत कहना, वली मरकर मिट्टी में मिल गई ये तस्वीर मत लाना। अगर ये ख्याल दिलो दिमाग में आएगा तो ईमान खत्म हो जाएगा, ईमान बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में मिलते नहीं है, अपनी खबरों में जिंदा रहते हैं, आने वाले की फरियाद को सुनते हैं, अल्लाह से उसकी तमाम तमन्नाओं को अल्लाह के दर से पूरी करा देते हैं। इसीलिए तो कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, वो यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। अल्लाह वाले अपनी खबरों में जिंदा है, हम उनको देख नहीं सकते मगर वो हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख सकते मगर वो हमें देख रहे हैं। हमें सिर्फ जिस्म को नहीं देख रहे, हमारे वो दिल को भी देखते हैं। हमारा दिल क्या कर रहा है, हमारी दिल की हरकत क्या कर रही है, हम उनके पास क्या लेने आए हैं, वो भी अल्लाह के बताने से अल्लाह वाले जानते हैं। अल्लाह के बताने से अल्लाह वाले जानते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली जो होते हैं उनकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह का वली बनता है, हदीस पाक में आया है, आपको मालूम होना चाहिए, फराइज की पाबंदी करते करते, वाजिबात की पाबंदी करते करते, नमाज की पाबंदी करते करते कसरत नवाफिल में लग जाता है, अल्लाह उसको अपना खुर बता कर देता है। ऐसा खुर बता करता है, आंख बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह वली के हाथ बन जाता है, अल्लाह वली के पैर बन जाता है। अल्लाह हाथ से पाक है, आंख से पाक है, कान से पाक है, जुबान से पाक है, मगर आंख बनने का मतलब यह है आंखें वली की होगी, देखना खुदा का होगा, कान वली के होंगे, सुनना खुदा का होगा, जुबान वली की होगी, बोलना खुदा का होगा, हाथ वली के होंगे, पकड़ना खुदा का होगा, पैर वली के होंगे, चलना खुदा का होगा। इसलिए दीवाने, जब अल्लाह उनके कान बन जाता है ना, पूरी दुनिया मिलकर भी अगर पुकारती है वली को तो सबकी पुकार को अल्लाह वाले सुन लेते हैं। वो कैसे? गरीब नवाज को ले लो या ताहिर शाह कादरी की दरगाह को ले लो, अगर ताहिर शाह कादरी की बारगाह में कोई तेलुगु में मांग रहा है, कोई कन्नड़ में मांग रहा है, कोई इंग्लिश में पूछ रहा है, कोई अंग्रेजी जुबान में बोल रहा है, कोई उर्दू जुबान में बोल रहा है, कोई अरबी में बोल रहा है, तो अल्लाह के वली जो अंदर सोए हैं सबकी जुबान भी जानते हैं और सबकी मुराद को पूरी भी कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनसे वादा लिया है। जो अल्लाह का होता है अल्लाह सारी कायनात को वली के खदमों में रख देता है, वली के खदमों में रख देता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारा मुल्क जो भारत है ना, ये पूरा भारत ऐसा मुल्क है, इसके अंदर हजार वजह हर मुल्क में अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं, हर शहर में कोई ना कोई वली मिल जाएगा। आइए सरकार के दीवाने, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की बात करता हूं। अल्लाह अकबर, अमरोहा जिला मुरादाबाद में 2 अल्लाह वालों की मज़ारें हैं, ये आज भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं बच्चों से पहले कह चुका हूं कि बीच में उठक बैठक ना करें, डिस्टर्ब होता। थोड़ी देर के लिए बातें समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? साउंड क्लियर आ रहा? समझ में आ रही तो माशाल्लाह एक बार सुभान अल्लाह बोलो, पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से सुभान अल्लाह कहिए एक बार, माशाल्लाह। देखिए, हम अगर यहाँ सुभान अल्लाह कहेंगे, अंदर से वली भी गवाही देंगे। मेरे दीवाने, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे रब की पाकी बयान कर रहे हैं, और जब अगर वो गवाही देंगे तो कंफर्म है हम जन्नत में जाने का, पक्का जन्नत में जाने का, क्योंकि उन्होंने अगर देख लिए, उन्होंने खुश हो गए। आज हमारी बहनों को देखा, यहाँ रहने वाले तमाम मर्दों को अगर वली ने देखा, मुस्कुराए तो फिर हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। वली को कब मुस्कुराते हैं? वली कब मुस्कुराते हैं? गुटखा खाने से नहीं मुस्कुराते, पान परख खाने से नहीं मुस्कुराते, सिगरेट और गांजा मारने से वली खुश नहीं होते, शराब और शैली पीने से वली खुश नहीं होते, सट्टाबाजी और
सुभान अल्लाह कहना होगा, कुरान की तिलावत करना होगा, नबी की नात और गौस की मनकबत पढ़ना होगा। इंशाअल्लाह अगर हम सुभान अल्लाह कहेंगे अल्लाह वाले भी खुश हो जाएंगे, अगर वली खुश हो गए तो हम सबका बेड़ा भी पार हो जाएगा। इसलिए जब भी बात कोई अच्छी लगी तो क्या कहेंगे? और जोर से। आज जज्बे की जरूरत है, मगर वो जज्बा नहीं जो जेल भेजने का है। हमको तो वो जज्बा चाहिए जो हमारे सीने को मदीना बना सके। हमें वो जज्बे की बात नहीं कर रहे जो प्रोटेस्ट करो, रियाला निकालो, चीखो चिल्लाओ, झगड़े करो, ये हम इसकी तालीम नहीं देते। हमारा मजहब ये नहीं चाहता है। हम तो ये जज्बा उभारना चाहते हैं, एक मुसलमान को अपने अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए क्या शर्म, क्या डर, किससे डरते हो? किसने तुम्हारी जुबान को रोका है? पुकारो उस खुदा को जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया। पुकारो उस खुदा को जिसने तुम्हारे लिए आसमान का शामियाना लगा दिया। पुकारो उस खुदा को जिसने मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब में डुबो दिया। पुकारो उस परवरदिगार को जिसने आपको दो आंख और दो हाथ, दो पैर, दो कान और जुबान, मुक्का और गूंगा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह बोलने वाला बना दिया है। जब उसने सब कुछ लिया, उसकी तारीफ करने के लिए हमें क्यों हिचकिचाना? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उठाते की जब डाउन कर दिए, डाउन हो रहे इसलिए जरा उठाए तो उठाकर रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सुभान अल्लाह, ये जज्बा बाकी रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। आइए सरकार के दीवानों, अमरोहा जिला मुरादाबाद में दो अल्लाह वालों का मजार है। हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां तशरीफ लाए। जैसे वहां तशरीफ लाए, वहां एक अल्लाह वाले बैठे थे जिनका नाम शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। आपने कहा, देखो भाई, मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ, आप कहीं और अपना ठिकाना बना लीजिए। उन्होंने कहा, मेरे पीर ने मुझे यहीं बैठने का हुक्म दिया, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। इतना कहते ही हजरत शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आया। आपने अपनी जुबान से क्या कहा? अगर तू यहां रहना चाहता तो रह, तेरे मरने के बाद तेरी खबर पे बिच्छू रहेंगे। इतना उन्होंने कह दिया। उन्होंने भी जलाल में आकर बोले, ठीक है, तुम भी यहीं पर रहो, तुम गुजर जाने के बाद तुम्हारी खबर के पास गद्दे रहेंगे। इन्हों क्या बोले? बिच्छू। इन्हों क्या बोले? गद्दे तुम्हारे खबर के पास रहेंगे। अब इन्हों सुनने के बाद बोले, अगर मेरी खबर के पास जब गधे आएंगे तो वो कोई गधा पेशाब पखाना ना करे। उन्होंने कहा, जा नहीं करेगा। अब उन्होंने कहा कि तुमने कहा मेरी खबर पर बिच्छू रहेंगे, अब बिच्छू अगर आए तो किसी को डंक नहीं मारना, किसी को डंक नहीं मारना। कहा, जा नहीं मारते। आज भी ये दो मजार जो अल्लाह वालों के हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, वहां की सरजमीन पर मौजूद है कि दो अल्लाह वालों की खबर के पास जाओ, एक वली के पास गधे मिलते हैं, मगर गधे जितने भी हैं वहां पेशाब वगैरह नहीं करते, क्योंकि अल्लाह के वली की जुबान से निकला हुआ है। और जो बिच्छू और खबर पर है वो बिच्छू किसी को डंक नहीं मारता। जाने वाले जियारत करके बिच्छू को अपने हाथ में लेते हैं, बिच्छू नहीं डंक मारता। अगर दरगाह से बाहर बिच्छू को ले गए, बराबर डंक मारता, अंदर नहीं मारता डंक, अंदर नहीं मारता। मजार से बाहर निकल गए या वो बिच्छू को लेकर आप दरगाह से बाहर आ गए तो बिच्छू डंक मारता। अब अंदर क्यों नहीं मारता बिच्छू? तो बिच्छू अपनी जुबान से कहता है, वली देख रहा है, मैं इसलिए नहीं मार सकता, वली देख रहा है। जरा तू बाउंड्री क्रॉस कर गो तो देख, मेरा जहर तेरे बदन को कितना परेशान कर देता है। अल्लाह अकबर। ये करामत मेरी बहनों, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं, मिस्र और इराक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ इस मुल्क के अंदर आज भी दो अल्लाह वाले मौजूद हैं, उनकी खबर पर इतने बिच्छू है कि कई लोगों ने, उनकी जियारत करने वालों ने की और बिच्छू को अपने हाथ में भी लिया। वो डंक नहीं मारता, हाथ में लिए, मुंह पर डाल लिए, मगर बिच्छू किसी को डंक नहीं मारता। अल्लाह वालों का अदब जानवर भी करते हैं, बिच्छू भी करते हैं, हैवानात भी करते हैं, और एक इंसान है जो अल्लाह वालों की तौहीन कर रहा है। वली को यह समझता है वो भी हमारी तरह है, हम भी अमल करें तो हम भी गौस बन सकते हैं, हम भी तारशाह खाली बन सकते हैं, हम भी नवाली सरकार बन सकते हैं, हम भी अमल करें तो वली बन सकते हैं। फजर की नमाज को उठने हाथ से नहीं होता, वली बनने के लिए निकला है। इशा के 17 रकात सही नहीं पढ़ सकते, वली बनने के लिए निकला है। वलियों को अपने से कंपेयर करने वालों, हम
عطا نہیں کر سک رہے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا ولی ہوتا ہے, اللہ والے ہوتے ہیں. ہم 2 گھنٹے وضو سے نہیں رہ سکتے, 2 گھنٹے اجتماع میں نہیں رہ سکتے. اگر یہ 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے ہماری کمر جواب دیتی ہے, ہمارے گھٹنے جواب دیتے ہیں, ہماری پیٹھ ہمیں کہتی ہے جلدی لیٹ جا. ہم اتنے کمزور اور ناتواں ہو کر اللہ والوں کو اپنے جیسا سمجھنا, ولی کے پاس جانا شرک ہے, ان سے نہیں مانگنا یہ تو بدعت ہے. ایسے الفاظ کہہ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, کیونکہ اللہ والوں کی شان کیا ہے قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ, خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ والوں کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں کو کسی چیز کا خوف بھی اور غم دونوں نہیں ہوتا. خوف کسے کہتے ہیں, غم کسے کہتے ہیں, یہ 2 لفظوں میں سمجھا کر آگے نکل جاتا ہو. خوف یعنی اگر آپ کو آ کے کسی نے کان میں کہہ دیا تو اجتماع میں بیٹھا بچ کو ہے, جیسے اجتماع ختم ہوا تو باہر نکلتے ایک آدمی تجھے کترنے والا ہے, اس کے کان میں تمہیں پھونک کر چلے گئے, اب انہیں بیٹھتا چین سے, خوف طاری ہوتا نہیں, بولو جی, حیبت شروع ہوتی. اب بازو والے بولتے کیا ہوئی, ابھی تو اچھا تھا, جب پسینہ نکل رہا, بی پی بڑھ رہی, کیا ہوا, نہیں میرے مارنے کو اس سے لوگ آئے کہتے خوف طاری ہوا. خوف کسے کیا بولتے, خوف. غم کسے بولتے, گھر جل گیا, گھر برباد ہو گیا, بچے مر گئے, گھر کے باہر ڈھیلی پر سر کو ہاتھ لگا لے بیٹھے غم بنا لیتے. افسوس کئی کو غم کر رہے, میرا سب کچھ لٹ گیا صاحب, غم آ گیا ہے نا. غم اور خوف دونوں ہمارے اندر کٹ کٹ کو بھرا سو ہے. اتنا بھرلے کو اہل حدیث والے تبلیغ جماعت والے کیا بول رہے, ولیاں کرنے نہیں جانا کہتے. کہاں جانا, ڈائریکٹ منگنا کہتے. منگتے کیا ڈائریکٹ اللہ سے, ڈائریکٹ کیا بھی نہیں ملتا, ڈائریکٹ صرف دوزخ ملتی, وسیلے سے جنت ملتی. دوزخ میں جانے کے واسطے کس کا بھی وسیلہ نہیں ہونا, ڈائریکٹ دوزخ میں جاتے. جنت میں جانے کے واسطے نیچے سے لے اوپر تک وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے. ارے زور سے بولو, ذرا چرکے لگنے کے باتیں بھی میں بولتا ہوں. کئی کو بولے تو ہمارے عقیدے بھی اچھے ہونا, عقیدے جب اچھے ہوئے تو عمل بھی صحیح ہوتا. اگر عقیدہ غلط ہے, ولیوں کے بارے میں یہ سوچ رہے نہیں ان سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا, ہمیں کب نہ کو بولے وہی اللہ سے مانگنا, نہیں بول کو نہیں, ہمیں اس قابل نہیں, اس سے نہیں مانگ سکتے. اس کے ولی کے پاس گئے تو انہوں مانگ پوری کرا دیتے. آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک واقعہ ہوتا ہے. انہوں کہتے قرآن میں ہے کیا, حالت ہے قرآن میں, انہوں کہتے قرآن میں ہے کیا, قرآن سے بات کرو. اب میں کئی جگہ یہ بات بول چکا ہوں, قرآن پہلے کیا نبی پہلے, بولو جی, ڈر رہے کہ زور سے بولو, نبی پہلے کیا قرآن پہلے, نبی پہلے, محبت سے بولو نبی پہلے, بعد میں. اچھا قرآن 30 پارے پورے ایسا جبریل لکرک نہیں دیے ڈبے میں, یا رسول اللہ یہ ڈبے میں 30 پارے ہیں, اس میں کیا لکھے سے وہی کر کو آؤ بول کو لکرک نہیں دیے. حضور چلے تو قرآن بنے, حضور چلے تو, سو گئے تو, زلفیں اٹھائے تو, سرکار کا چہرہ دیکھتے کی قرآن, یعنی حضور کی ہر حرکت قرآن. بولے جی محبت سے سبحان اللہ. اب قرآن جب تک نبی مکے میں تھے مکی بنا, مدینے میں تھے مدنی بنا, تو قرآن بعد میں نبی پہلے, اور کسی نے جا کر بلکہ صحابہ نے جا کر ہم سب کی ماں سے پوچھا یا ام المومنین عائشہ صدیقہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے, تو ام المومنین عائشہ نے کیا کہا, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے, پورا قرآن مصطفیٰ کی اخلاق ہے, کردار ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی, انہیں قرآن میں ڈھونڈ رہا ولی کو, قرآن میں ڈھونڈ رہا ولی سے مدد مانگنا ہے کیا. ارے پورا قرآن نبی کی شان ہے, پورا قرآن نبی کی سیرت ہے, پورا قرآن نبی کی اخلاق ہے, پورا قرآن نبی کی عظمت ہے. تو قرآن بعد میں نبی پہلے, بعد میں قرآن پہلے نبی. اچھا قرآن کیسے آیا, آسمانوں سے تھوڑا 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 اترتا گیا, کبھی پتوں پر, کبھی کٹوں پر, کبھی گنڈوں پر, چٹانوں پر لکھتے تھے. ایسی قرآن مجید جو تمہارے گھر میں ویسی نہیں تھی, یہ کتاب بعد میں بنی, مگر میرے نبی کے دور میں پورا قرآن ایسا نہیں اترا, تھوڑی تھوڑی آیتیں ضرورت پڑی تو جب اتری وہ آیتوں کو سب جمانے والے عثمان غنی, اس کے واسطے بولتے ہیں ان کو جامع القرآن, سمجھے, جامع القرآن کامل حیاء الایمان.
حضرت عثمان غنی ہے جنہوں نے قرآن کو جمایا، میرے نبی کے صحابی بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے، میرے نبی کے صحابی بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے۔ تو اولیاء اکرام سے مدد مانگنا، ان کی چوکٹ پہ جا کر دعائیں مانگنا، یہ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں سور ہے، حسد کا آئینہ نکال محبت کا آئینہ لگا نظر آتا، حسد کا آئینہ نکال محبت کا آئینہ لگا نظر آتا۔ تجھے غوث پاک بھی قرآن میں نظر آئیں گے، غریب نواز بھی نظر آئیں گے، بندہ نواز بھی نظر آئیں گے، صابر پیا بھی نظر آئیں گے، حضرت محبوب الہی بھی نظر آئیں گے، نووالی سرکار بھی نظر آئیں گے، ظاہر شاہ قادری بھی نظر آئیں گے، سارے ولیوں کا بھی ذکر آئے گا اور ولی بھی نظر آئیں گے، حتیٰ کہ تیرا بھی نام قرآن میں ہے، میرا بھی نام قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ دیا، تم بہترین امت ہو، اب آپ بھی امتی ہے، میں بھی امتی ہوں، ہم سب کا نام قرآن میں آ ہی گیا ہے۔ بات سمجھ میں آگے نا؟ قرآن میں آپ کا بھی میرا بھی ذکر ہے، انہوں ہاں ڈھونڈ رہے غوث پاک کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے، اس کا مطلب یا غوث نہیں بولنا، یا اللہ بولنا، صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ اس طریقے کی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نوجوانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ کل تک انہیں جھنڈا لگاتا تھا، جھنڈے سے بیزار گی لے رہا، گھروں سے جھنڈے نکل رہے، اس کے واسطے دنڈے سے مارا کھا رہے ہیں آج۔ جھنڈے گھراں کرے تو گھراں ٹھنڈے رہتے، جھنڈے گھراں کے اوپر رہے تو گھراں ٹھنڈے رہتے۔ یہ جھنڈے جب سے چلے گئے گھر میں یتا سونا رکھے تو بھی چین نہیں ہے، الماریاں بھر بھر کو سونا چاندی اناجاں رکھے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ ساس بہو میں تو پڑتا، بہو ساس میں تو پڑتا، دیوالی جھٹانی میں تو پڑتا، میاں بیوی میں تو پڑتا، بہرحال کسی نہ کسی میں جھگڑا نکل جاتا ہے۔ گھراں سکون نہیں ہے، گھروں میں چین نہیں ہے، کیونکہ گھروں سے جھنڈے غوث کے نکل گئے۔ 12ویں کا جھنڈا، 11ویں کا جھنڈا بڑی عقیدت سے لگاتے تھے، جب سے یہ لوگ آئے ابودی میں ہمارے گھروں سے جھنڈے بھی گئے، بچے فاتح سے بھی غائب ہو جا رہے ہیں۔ آرے رے بیٹھ رہے آرے فاتح دلا رہے بڑے کے نہیں دلانا، وہ شرک ہے، مول صاحب بولے اس لیے میں نہیں دلاتا ہوں، فاتح نہیں دلاتا، ایسا بول کو بھاگ جا رہے۔ ارے فاتح دلا کو تیری ماں تجھے پیدا کری، منت منگ کو تو دنیا میں آیا، آج تو شرک بولنے بیٹھا تو تیری آخرت بھی گئی، دنیا بھی چلے گی۔ سمجھو بات کو، اللہ والے آج بھی خبروں میں بولو جی زندہ ہیں۔ اب جانے کے بعد ہمیں ان کے پاس مانگتے نا، میں قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، قرآن میں ہے اللہ والے کے آستانے میں ٹھہر کر، اللہ والے تو اللہ والے ہے، مگر اللہ والے تو ہے، اللہ والے جب بیٹھے وہ جگہ کرنے بیٹھ کر دعا مانگے تو بھی اللہ دعا قبول کر لیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا؟ بولو جی، نہیں معلوم؟ نہیں، کچھ لوگوں کو معلوم ہے، ذرا ڈر رہے کہاں تو مسٹیک ہو جائیں گا۔ بولو مریم، بولو کیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولیہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ ان کی ماں کے شکم میں مریم ہے، ان کی ماں کے شکم میں مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی تو ان کی ماں نے منت مانگی۔ کیا منت مانگی؟ اگر مجھے بیٹی ہو یا بیٹا ہو میں بیت المقدس کے لیے آزاد کر دیتی ہوں، یعنی وقف کر دیتی ہوں بیت المقدس کے لیے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، کعبہ نہیں تھا پہلے قبلہ، اب بیت المقدس کے لیے میں آزاد، اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو منت مانگ لیے کہ میں اس بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اب جیسی ہی بیٹی ہوئی تو مریم پیدا ہوئی، اب مریم پیدا ہونے کے بعد منت مانگے۔ دیکھیے یہاں کئی باتیں ہمیں مل رہی ہے، قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ملتا، جا کر چیک کر لیجیے آپ۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ ذکر ہوا ہے، مریم کی والدہ نے منت مانگی۔ آج اگر کوئی میری بہن گھر میں بیٹھ کر یہ منت مانگتی ہے، یا طاہر شاہ قادری آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ دیتی ہو، میرے گھر میں قرض میں پریشان ہے، 1 مہینے کے اندر اگر قرض پھٹ گیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کی منت مانگتی ہوں، یہ منت حرام نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر ولی کی نظر سے قرضہ پھٹ گیا تو فوراً منت کو پوری کرنے سے اللہ اور ترقی عطا فرما دیتا ہے، اور ترقی عطا کرتا ہے۔ مریم کی ماں نے منت مانگی تھی، اے اللہ اگر مجھے بیٹی ہو یا بیٹا ہو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی،
है रिश्ते में। आपकी उम्र 80 या 90 बिल्कुल बताई गई कि ज़ैफुल उम्र थे, आप बुढ़ापे में पहुंच चुके थे। जैसे ही मरियम को आपने लिया, बैतुल मुक़द्दस के बाला खाने की मंजिल पर एक मेहराब बनाया, उसी मेहराब में मरियम को रखा और मरियम वहां अल्लाह की इबादत करती थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सुबह शाम अपनी बेटी मरियम के पास आते थे ताकि देखें कि क्या खा रही है और कुछ खाने पीने के लिए चीजें लेकर जाएं। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी आते तो आपने क्या देखा, मरियम के पास बेमौसम के फल थे, गर्मी के फल सर्दी में, सर्दी के फल गर्मी में नजर आने लगे। मरियम के पास ये फलों को देखकर हैरान हो गए ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी है। आपने पूछा कि अरे मरियम ये फल कहां से आते, जबकि ये बेमौसम का फल आ रहा है, गर्मी में सर्दी का फल देखता हो, सर्दी में गर्मियों का फल देखता हो, ये फल तुम्हें कहां से आते हैं और कौन लाता है? अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह दे रहा है। मरियम के पास जब उन्होंने ये बेमौसम के फल देखे तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मैं तो ज़ैफुल उम्र हो चुका हूं, मुझे एक बेटे की जरूरत है, अब तक मुझे बेटा नहीं हुआ, अब मौका अच्छा है जब अल्लाह मरियम के पास बेमौसम के फल देता है तो अब मैं भी इस मौसम में पहुंचा हूं कि अब मैं औलाद देने की सकत नहीं रख सकता, मगर बेमौसम के फल जब अल्लाह देने पर कादिर है तो मेरा ईमान और यकीन है कि मुझे भी अल्लाह औलाद देगा। उसी वक्त उसी जगह बैठकर जहां मरियम इबादत करती है, वो इबादत खाने में बैठकर जहां फल आ रहे हैं उसी जगह बैठकर ज़करिया हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं कई साल से तेरी बारगाह में एक नरेना औलाद मांग रहा हूं, नेक बेटा तलब कर रहा हूं, जहां तो अपनी नेमतें मरियम पर जाहिर कर रहा है, इस मुकद्दस जगह का वास्ता मुझे एक बेटा अता कर दे। आवाज आई, ज़करिया तूने वलिया कामिला की दुआ वसीला लिया और यहां तूने दुआ मांगी है, हम तुझे इस दुआ को कबूल करते हुए बशारत देते हैं कि तुझे एक बेटा देंगे, उसका नाम याह्या होगा। बोले सुभान अल्लाह। याह्या होगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले याह्या अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह ने सिर्फ बेटा ऐसा नहीं दिया बल्कि उनको नबी बना दिया, नबूवत से सरफराज फरमा दिया। क्या बात समझ में आ गई? ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर ने भी उस जगह बैठकर उनके वसीले से दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ को रद्द नहीं किया। हम भी अगर शेख जलालुद्दीन की चौखट पर बैठकर दुआ करें उनके वसीले से तो हमारी भी दुआ कबूल हो जाएगी। यहां से साफ समझ में आया, कुरान में सूरह आल इमरान में ये तफसील से वाकया है। कौन तो भी तोंडा मोंडा आया तो उसे बोल कुरान पहले सही पढ़वाओ, बोलो से नहीं समझ में आ रहा तो फोन लगाओ को मेरे को दो, मैं बात करता हूं। उसके बाद भी उन नहीं माने तो वहां से पढ़ते की उन्हें सीधा घर को जाकर बेड पर सो जाना। ताकत अल्लाह कलाम में वैसी रखे, आप पढ़े तो बेड पर जाकर सो जाते, बेड पर जाकर सो साला, अगर पढ़े तो उठ को बाहर आ जाता, दोनों भी है। तो ये दो तरीके भी अल्लाह ने अल्लाह वालों की चौखट पे रखे हैं। अगर आपके घर में टेंशन ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, अगर आदमी के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, अब वो सीधा ताहिर शाह कादरी के पहाड़ पर चले गया और जाकर वहां से जो भी तेल वगैरह था वो अपनी अकीदत और मोहब्बत के साथ पेट को लगाया, जहां भी दर्द है लगा लिया तो अल्लाह उसे शिफा दे देता है, उसको इत्मीनान भी मिल जाता है, क्योंकि ये उसका अकीदा है, उसका इश्क और मोहब्बत है। तो गोया सरकार के दीवानों, अब ये तेल लगाना कुरान में है क्या, ढूंढने गया तब मैं से क्या बोलना सब, ये सब ये क्या है, लोगों को अफरा तफरी में डालने के चक्कर हैं। पहले से सब लोग कट्टर सुन्यास थे, इनो आज जब से बिगड़ रहे हैं। बोलो जी कौन बिगाड़ रहे? हमें बिगाड़ रहे, उन्होंने बिगाड़ रहे। हमें क्या बोल रहे? कुंडे करो बोल रहे, उन्होंने क्या बोल रहे? नहीं करना बोल रहे। हमें बड़े के फाते दिलाना बोल रहे, उन्होंने क्या बोल रहे? नक्को बोल रहे। हमें झंडा लगाना बोल रहे, उन्होंने नहीं लगाना बोल रहे। हमें अंगूठा चूमना बोल रहे, उन्होंने नहीं चूमना बोल रहे। हम सलाम पढ़ना बोल रहे, उन्होंने नहीं पढ़ना बोल रहे। अब बोलो झगड़े कौन डाल रहा? सुन्नी नहीं बोलो तो आप उनको अपने घर तक आने क्यों देते हो? जो नबी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो गौस का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है। अगर आपको कुछ सीखना है तो इनकी सोहबत में नहीं, गौस के दीवानों की सोहबत में बैठकर सीखो। ऐसे हाफिज साहब की सोहबत में बैठो, इंशाअल्लाह अगर बच्चा सही कट्टर सुन्नी आलिम के पास इल्म हासिल करेगा, झंडा भी लगाएगा, बड़े के फातिहा भी दिलाएगा, नबी को सलाम भी करेगा। मोहब्बत से बोलो जी सुभान अल्लाह।
اچھا آسمانی مقدس فرشتے کتنے ہیں؟ بولو زور سے. نہیں معلوم رہتے معلوم ہو جاتا, ذرا زور سے بولو کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ یہ معلوم رہنا, یہ نالج رکھنا ضروری ہے. 2020 میچ کھیل رہے سالے پلیئروں کا نام یاد رکھے تو دوزخ کے ڈنڈے پڑتے. یہ فرشتوں کے نام یاد رکھے تو ڈنڈے بھی نہیں پڑتے, بلکہ یہ فرشتے آنے والے خبر میں یہ لوگ کیا کرتے, ہمارا نام بار بار لیتا تھا, اسے نکو مارو, نرم نکو کرو, اسے چھوڑ دے بولتے. ارے بولو جی سبحان اللہ. کتنے فرشتے ہیں؟ زور سے بولو جی. 4. یہ نالج رکھنا مرنے کے بعد خبر میں کام آتا ہے. اگر آپ منہ سے بولے تو تمہارے دل میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, پرنٹ ہو رہا. اب اس کے بعد خبر میں جانے کے بعد بٹن دباتے کیا بولے سو سب کیسٹ بجتی. سبحان اللہ بولے, 4 بولے, 4 بولے, 3 بار 4 بولے. فرشتے بولتے یہ 4 کیا ہے بولے تو اب بول رہا فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام. بولو کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام. کتنے ہو گئے؟ 4. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ 4 فرشتوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. چاروں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پہلا فرشتہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار بھی ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے اللہ کے پاس سے اللہ کا پیغام انبیاء کے پاس لانا, پہنچانا, دینا. ان کا کام ہے نا بھائی, یہ تو ہے نا, معلوم ہے نا آپ کو. اسی طرح پانی برسانا اور روزی دینے کا کام کس کا ہے؟ ماشاءاللہ کس کا ہے؟ نہیں بول رہے سب جنے. ہم نہ کو کون بھی شکایت نہیں. مول صاحب تمہیں ایسا پوچھے تو ہمارے کیا معلوم, آپ بولو نیکسٹ ٹائم بولتے تمہیں ہے نہیں. تمہیں بیٹھے تو نہ بھائی سکھائیں گے, آن لائن سیکھتے تو سیکھو, ہمارے فون کرو, ہمارے اطہر بھائی کو, ہمیں آن لائن میں سکھا لیتے تمہارے. ارے بولو جی زور سے سبحان اللہ. یہ نالج آنا ضروری ہے. وہ کون بنے گا کروڑ پتی میں جا بیٹھا ہے ایک جنا مسلمان عرفان بولنے والا, اس کو 4 سوال کریا. انہیں کیا سوال کریا؟ حضور کے والد کا نام بولے تو حضور کے والد کا نام نہیں بول سکیا انہیں. مسلمان ان بول رہا, حالانکہ سامنے والا کیا بول رہا, ذرا پوری دنیا دیکھ رہی سو ہے, تم ایک مسلمان ہے, حضور کے والد کا نام بولو. اے عبداللہ, بی عبد المطلب, سی ابو بکر, ڈی ابو لہب, کچھ ایسا ڈالا تھا. اب اس میں انہوں کیا بول رہے معلوم ہے, یہ تک نہیں معلوم. مسلمان بیٹھا سو عرفان بول کے اس کا نام تھا, مدراس کا ہو, جواب نہیں دے سکے. آپ یوٹیوب میں جا کو دیکھو. افسوس کی بات ہے ہمارے کو ہماری اسلامی معلومات نہیں ہے, اور ہم مسلمان ہیں تو معلومات نہیں ہے, تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں. یہ چیزوں کا جاننا ضروری ہے. یہ 4 فرشتے جو ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. ہمارے حضور علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. بولو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. جنتی ہیں, زور سے بولو. جنتی ہے نا, جنتی ہے. یہ نام یاد رکھنا, حضور کے ابا کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے نبی کے بابا کا نام اگر یاد رکھے نا, ہماری پریشانی ختم ہو جاتی. اگر تمہیں ہیرو, ہیروئن, پکچر بنانے والے کا, گانے والے کا, سب کے نام یاد رکھے, خبر میں بہت پڑتے. اگر یہ اللہ والوں کے نام یاد رکھے تو خبر میں کیڑے بھی نہیں آتے, مکوڑے بھی نہیں آتے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, 4 فرشتے. کتنے فرشتے؟ 4. پہلا فرشتہ اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. دوسرے کا نام میکائیل علیہ السلام. تیسرا اسرافیل علیہ السلام. چوتھا اسرائیل علیہ السلام. 4 فرشتے. دیکھیے 4 فرشتے. جبریل کا کام ہے اللہ کے پاس سے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا. آدم کنے آئے, شیش کنے آئے, ادریس کنے آئے, زکریا کنے آئے, یحییٰ کنے آئے, یونس کنے آئے, نوح کنے آئے, ابراہیم علیہ السلام کنے آئے, اسماعیل علیہ السلام کنے آئے. 1,80,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے جبریل علیہ السلام ہے. اور سب سے زیادہ اگر کسی کے دربار میں آئے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں آئے ہیں. حضرت جبریل کا یہ کام ہے, اللہ کا پیغام جبریل لے کر آ رہے ہیں. اب یہاں میں آپ کو اہم عقیدہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو ساری عمارت صحیح. عقیدہ بولے تو بنیاد, فاؤنڈیشن گھر کا جتنا گھٹ اور مضبوط رہا وہ اتنی لمبی عمارت بناؤ, بلڈنگ نہیں گرتی. اگر فاؤنڈیشن غلط ہے تو بلڈنگ کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. تو پہلے عقیدہ پکا ہونا. اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہے, فجر پڑھو تو قبول
इमारत, दुकानों की इमारत, तरावियों की इमारत, रोजों की इमारत, नेकियों की इमारत, भूखों को खाना खिलाने की इमारत, इस तरह जितने भी अमाल करोगे उस तरह इमारतें तामीर की जाएगी। तब जाकर अल्लाह के नजदीक जिसके अमाल बढ़ते जाएंगे, तकवा बढ़ता जाएगा, तो मेरे रब ने कह दिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे आला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो गोया समझ में आया कि ये 4 मलाइका जो है उनमें से जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम अंबिया के लिए लाते। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? पानी बरसाना, रोजी देना। कौन तुम्हें क्या बोल रहे हैं? मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या क्या करते हैं? हालांकि रोजी देने वाला कौन? फिर इन्हों के गुलारे। पानी बरसाने वाला कौन? फिर इन्हों के बरसा रहे। पॉइंट अकीदा मजबूत कर रहा हूं, नोट कीजिए आप। अल्लाह ही बरसाने वाला है, मगर अल्लाह डायरेक्ट नहीं, मीकाईल को दिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट। पानी बरसाने का टेंडर पूरा 13 यादोनी में यत्ता, रायचूर में यत्ता, यमगनूर में यत्ता, करनूल में यत्ता। उन्होंने कहां बोले अल्लाह, जहां अल्लाह बोलिया वहां वत्ता बरसाना। अरे यहाँ आया, वहां नहीं आया, वहां आया, यहाँ आया, बोलते नहीं। कहां बरसाओ? बोले वहां बरसाना। किसका काम है ये? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जवाब दीजिए, उसके बाद आप, मुझे यकीन है अब कल से भटकते नहीं, भटकाने वाला है तो उसे भटका भगा छोड़ते हैं। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? पानी रोजी देना। इसराफिल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? सूर अपने मुंह में लेकर खड़े हैं, कान अल्लाह की तरफ लगे हैं। अल्लाह जैसे हुक्म दिया तो सूर फूके तो पूरी दुनिया फना हो जाती, पूरी दुनिया खत्म। ये जो पहाड़ है बड़े बड़े, कपास और रुई के मानी जुड़ेंगे, उनकी आवाज से लोगों के कान फट जाएंगे। हजरत इसराफील सूर फूकने वाले फरिश्ते का नाम है, और वो सूर अपने मुंह में लेकर खड़े हैं, वो अपने मुंह में लेकर खड़े हुए हैं, अल्लाह की तरफ कान लगे हुए, हुक्म होते फूक देंगे। वक्त करीब आ रहा, दुनिया खत्म होने का। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो लोगों, इबादत करो। कब तक अपने मर्दों को सताती मेरी बहन? कब तक मर्द अपनी बीवियों को ना हक के मारते? खुदारा मुसलमानों, अल्लाह से डरो। हमारा कल्चर ये नहीं कि बदतमीजी से पेश आए। नबी का कलमा पढ़ने वाला बीवी से भी अच्छा सलूक करे, माँ से भी अच्छा सलूक करे, बाप से भी अच्छा सलूक करे, बहनों से भी अच्छा सलूक करे, पड़ोसियों के साथ भी अच्छा रहे। घर से निकले तो घर वाले भी दुआ करे, महल्ले वाले भी दुआ करे। ये कैफियत अपने अंदर पैदा करो। छोड़ दो लड़ाई झगड़ा करना, छोड़ दो अपनी बीवी को नाहक के शक करके उस पर झपट पड़ना, और छोड़ दो मेरी बहन अपने शौहर पर डाउट मत करना, शक मत करना। आगे सारी बातें समझाकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा, असल बात की तरफ से निकल जाएंगे। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है रोजी देना, पानी बरसाना। जिब्रील का काम है अल्लाह का पैगाम अंबिया तक लाना, और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेकर खड़े हैं, अल्लाह का हुक्म आते ही फूंक देंगे, पूरी दुनिया खत्म होगी। अल्लाह अकबर। अब आखिरी फरिश्ता बचा जिसका नाम है इज़राइल अलैहिस्सलाम। इन्हों कौन है मालूम है? बोलो जी, डर रहे क्या? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना है जमीन के साये तले। कब तक बिस्तर पर सोने वाले, कब तक उजाले में रहने वाले। अब आखिरी फरिश्ते का नाम सुन लो। ये वो फरिश्ता है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं, लज्जतों को मिटा देने वाला, मखबर के बिस्तर से निकालकर कब्र की तारीक वादी में ले जाने वाला वो मलकल मौत है जिसका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है। रूह हफ्स करने वाला फरिश्ता, जाने निकालने वाला फरिश्ता, माँ बाप से बच्चों को जुदा करने वाला। अगर छोटे छोटे बच्चे घर में है, जिसकी रूह निकालने के लिए मेरी मलकल मौत आती है, तो बच्चों पर रहम नहीं करते कि इसके छोटे बच्चे हैं, इसकी रूह ले जाओ तो इनके बच्चों का क्या होगा। हुक्म खुदा पाकर रूह हफ्स करने वाला फरिश्ता, उसका नाम है इज़राइल
इस्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, उस फरिश्ते से सबका सामना होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं। जब ये फरिश्ता आसमान से जमीन पर आता है किसी की रूह निकालने के लिए तो अकेला नहीं आता, 70,000 जन्नत के फरिश्ते भी साथ रहते हैं और 70,000 दोजख के फरिश्ते भी साथ रहते हैं। दोनों फरिश्तों की जमात को लेकर घर में जाता है। तुम दरवाजा बंद करो वो अंदर आता है, तुम ताले पे ताला लगाओ वो अंदर आता है, तुम बिल्डिंग के अंदर रहो तब भी अंदर आता है। अगर तुम बिल्डिंग से बचकर पानी में चले जाओ, पानी में जाकर शीश महल बनाकर बैठो कि मौत यहां नहीं आएगी, वहां भी आ सकता है। अल्लाह ने उसे वो पावर दिया है। जब मैंने मलकल मौत की ताकत को पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, या अल्लाह, जिस मोहम्मद के नूर से इस्राइल को बनाया उसकी ताकत का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा, नबी की असमत का आलम क्या होगा। जब ये फरिश्ता एक ही वक्त में पूरी दुनिया में सबकी रूह निकाल सकता है, निकालने वाला एक है, मरने वाले हजारों है। जब मेरे नबी के नूर से बने हुए फरिश्ते को अल्लाह ने ये पावर दिया तो मेरे नबी के पावर का आलम क्या होगा, मेरे रसूल के पावर का आलम क्या होगा। हमारे नबी बड़ी शान वाले हैं, अजमत वाले हैं, ताकत वाले हैं। अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत अता कर दी है। जब तक नाम मोहम्मद मुकम्मल दिल और जुबान पर नहीं आता कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे। तो बात क्या समझ में आ गई। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कितने फरिश्ते हो गए, जोर से बोलो, फिर बोलो, मैं और मोहब्बत से बोलो। पहले फरिश्ते का नाम बताओ, सट सट बोलना, इम्तिहान समझो, कामयाब हो गए तो बेड़ा पार हो जाता। पहले फरिश्ते का नाम जिब्राइल, दूसरे, तीसरे, चौथे इस्राइल अलैहिस्सलाम। अब देखिए जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह और अंबिया के बीच में क्या बने, वसीला। होशियार है लोग, मैं सो गए समझू, क्या बने, वसीला। अल्लाह होकर वसीले से दे रहा, अल्लाह होकर, अल्लाह कैसे दे रहा, जिब्रील के जरिए भेज रहा। चाहते तो अल्लाह डायरेक्ट भी पैगाम दे सकता था ना, ए मोहम्मद तुम मिलो, आदम तुम मिलो, मगर नहीं, जिब्रील को वसीला बनाया गया। तवज्जो चाह रहा हूं, जिब्रील वसीला है। पानी बरसाने वाला अल्लाह ही है मगर डायरेक्ट नहीं, बीच में वसीला मिकाईल है ना, मिकाईल अलैहिस्सलाम वसीला है। मिकाईल अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया गया। इसी तरह इस्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, सुर फूंकने वाले, पूरी दुनिया को फना करने वाला कौन, बोलो जी, अल्लाह है। मगर डायरेक्ट ने किसके जरिए, इसराफील को वसीला बनाया। दुनिया को फना करना है तो इसराफील वसीला, लोगों की रूह खब्ज करने वाले, मर गया अल्लाह बुला लिया, बोलते लेको कौन गए यहां से, कौन ले गए, मलकल मौत ले गए, इस्राइल अलैहिस्सलाम ले गए। लोग कहते अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे घर का बुला लग जाता है क्या, ऐसा एक एक जन घर को अल्लाह हिंगा। अल्लाह बड़ी शान वाला है, बैठ को कराता, तू जा उसको ला ले। अल्लाह होकर वसीले से काम चल रहा, वहां तू बंदा होकर नहीं लेना वसीला, किसका भी डायरेक्ट मांगना कहते हैं। डायरेक्ट मांगे मिलता क्या सब, तुम्हें बोलो, ऊपर से नीचे चीजें डायरेक्ट नहीं आ रही, वसीले से आ रही, इन्हें नीचे से ऊपर डायरेक्ट जाता कहते हैं। वसीला कंपलसरी जरूरी है। जन्नत कहाँ है, माँ के कदमों के नीचे जी। कहाँ है जन्नत, कहाँ है, माँ के कदमों के नीचे। माशाअल्लाह अदोनी की बच्चियां जवाब दे रही है। जन्नत कहाँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे ना तेरे सजदे काम आएंगे, ना तेरी तिलावत काम आएगी, ना रमजान के रोजे काम आएंगे, ना इबादत काम आएगी। अगर सारी इबादत को रब की बारगाह में मकबूल देखना चाहते हो तो आओ नौजवानों, पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद सजदे करो, अल्लाह सजदों को भी कबूल कर लेता है। आज पूरी मुसलमानों के महलों के अंदर सबसे ज्यादा जो गुनाह फैल रहा है वो माँ बाप की नाफरमानी, सताया जा रहा है, तकलीफें दी जा रही है। माँ बाप का दिल दुखाकर पूरे शहर को खुश करोगे तो जन्नत नहीं मिलती। माँ बाप को खुश करो, पूरे मोहल्ले वाले नाराज रहे तो रहने दे, अम्मा बाबा खुश रहे तो अल्लाह जन्नत दे देता।
मोहल्ले वालों को खुश कर को क्या करते जी, तुम्हें गांव में अच्छे होंगे, घर में अच्छे रहना। जो घर में अच्छा हुजूर क्या बोले, बाहर भी अच्छा बोले। जो घर में खराब है, घर में लाता नहीं, खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, डालता नहीं, ना माँ को देखता, ना बाप को देखता, ना बीवी को देखता, ना बहन को देखता, वो बहन को देखते कि चिड़ में आना, ये इसको अच्छे घर को कर को दिए, मेरे को अच्छे घर को नहीं दिए, उन्हें जरा सोना ज्यादा डाल लेके तो जरा मुंह टेढ़ा करना, कैसा मुरुसले से आ रही देख, कैसा तुरले रही देख। अरे बहन बहन से जल रही आज, खुशी नहीं है, भाई भाई से जल रहा है, भाई भाई से हसद, बहन बहन से हसद। ये हसद दिलों में रहना। अगर कोई तरक्की कर रहे तो दुआ देना, या अल्लाह इससे और दे, बोले तो अल्लाह तुम्हारे भी देता, अल्लाह और देता। किसी के गले में अगर नेकलेस है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, तो आप ये तय करें कि वो देने वाला अल्लाह है। उसको देखकर जलोगे तो यहां भी जलेंगे, मरने के बाद भी जलेंगे। मगर हमें जलना नहीं। किसी को अल्लाह अगर दे रहा, 2 व्हीलर थी, 4 व्हीलर रही, 4 व्हीलर थी, बिल्डिंग था, फिर अपार्टमेंट बना तरक्की हो रहा, चिपके जल को कहीं को आखिरत बर्बाद करते। अल्लाह उसे और दे, बोल यत्तज बोलो, अल्लाह तुम्हारे को देता। मैं दे रहा हूं, इन्हें खुशियों को दुआ दे रहा, इसको भी दे दो बोलता। जले बोले क्या होता, बोले तो हैसो भी जाता हमारे घर में का, जले जैसा और भी जाता। हसद तो भर गया सो आज के दौर में, इसलिए हमें कामयाब नहीं हो रहे, सक्सेस नहीं हो रहे। आज अगर कामयाबी चाहते मेरी बहन, खास करके हसद खत्म कर दो। घरा में छोटी मोटी बातों पे झगड़े करके, ये तलाक का मसला, खुला का मसला, कोर्ट को जाना, कचहरी को जाने की नौबत कहीं को ला रहे। अगर माफी भी मांग ले, गलती भी नहीं हुई, मगर मेरी वजह से झगड़ा बढ़ रहा, माफ कर दे, बोल को माफी मांगे तो इज्जत नहीं जाती, अल्लाह इज्जत बढ़ा देता है, इज्जत बढ़ा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको गड्ढे में डाल लिया, कुएं में चले गए, मगर एक लंबा वाक़या बात आ गई तो माफ करने की अर्ज कर देता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से तो निकल गए, मगर उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाला, ये समझा कि मर गए, मगर अल्लाह जिससे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे, मिस्र गए, मिस्र के बादशाह बने। और जब ये इनके जो भाई थे, वो भाई जब परेशान हुए, घर में गरीबी आ गई, तंगदस्ती आ गई, तो गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र पहुंचे, तो वहां बादशाह कोई और नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम बनकर बैठे हुए। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे, अरे ये तो हमारे भाई है, जिंदा है, तो अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनकर बैठे। जब वो लोग आकर लाइन में ठहरे, इनके भाइयां वो गल्ला दे रहे थे सब लोगों को, उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, हाँ मैं जानता हूं, हमने आपको इस तरह तकलीफ पहुंचाई। वो ये रोने लगे, तो हजरत क्या बोले, यूसुफ अलैहिस्सलाम मैंने माफ कर दिया आप लोगों को। एक ही झटके में, ऐसा नहीं बोले जा हट उधर हटाओ, ले जाओ इसे जेल में डालो, ऐसा नहीं बोले, जाओ मैं माफ कर दिया। ये होता जी, तुम अगर किसी को माफ कर दिए ना, तुम्हें माफी मांगने से घर का बड़ा झगड़ा खत्म होने वाला रहा, तो माफी मांग लिए तो बहुत बड़ा झगड़ा रुक गया ना, शैतान लिड़ को रो लेते बाहर चले जाता, रहमत खुदा की लौटते हुए घर में आती। क्या घर है, क्या खवातीन है, क्या औरतें हैं, गलती रखकर भी माफी मांग रहे, अल्लाह की याद इतनी पसंद आ जाती है कि उस घर में अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। माफी मांगने से इज्जत नहीं जाती। अगर कोई बड़ी हो, अगर छोटी से गलती होगी तो माफ करे, छोटी है तो बड़ी है तो भी माफी मांगे, इसमें इज्जत जाने वाली नहीं है। हमारे नबी की बारगाह में एक साहबी आकर पूछे, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक औरत है, बहुत नमाज़ें पढ़ती, इबादत करती, रोजे रखती, मगर पड़ोसी से झगड़ा करती, जुबान दराजी है, जुबान दराज है, और जुबान से क्या ना जाने बक करती है। हुजूर क्या बोले, वो जहन्नम में जाएगी बोले। फिर साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पड़ोस में एक औरत है, नमाज़ें तो कम है, इबादत भी है मगर कम है, सब है कम है, मगर पड़ोसियों से अच्छी है, हुजूर क्या बोले, जन्नत में है। अरे मोहब्बत से बोले जी सुभान अल्लाह। नमाज़ा पढ़ रही, तस्बीह ढकल रही। हमारी खास करके माँ बहनों को मैं तवज्जो चाहता हूँ कि बहनें बहुत है, मर्द हजरात मस्जिदा में भी बयाना सुन लेते, औरतों को बहुत कम मौका मिलता। अब आज बयान में बैठे हैं तो ये बातें अपने जहन में रखो कि छोटी बात को घर में बड़ा बना को इशू करके झगड़ा नको करो। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, घर में अगर साबुन गिरा, क्या गिरा, साबुन गिर गया, किसको दिखाओ ना, उठा को रखो, छोड़े तो किरकिरिस गई, मैं कहीं को उठाऊं, उन्हें फेंकी, आंधे सास उसे दो बातें करती, इन्हें नहीं उठाई, उन्हें नहीं उठाई, वो साबुन है ना, पानी पड़ पड़ को मोरी में घुल को जाता। अब पैसे लो, पसीना बहा को कमारे साला आया, तो एक साबुन कितना है आज,
50, 55, 30, 20 से तो कम नहीं है। अब घर में साबुन की जरूरत पड़ती है कपड़े धोने, भगोने धोने, बर्तना धोने, सब के लिए। बोलो भैया, घर की जिंदगियां चल रहे सो है ना, हमारे इस्लाम में हर एक के घर का ये मसला है। तो हम जब घर के अंदर ये साबुन गिरा, किसको दिखा उन्हें उठाना। वहाँ ये अगर मर्द आदमी चलते हुए गया, ये औरतों का काम बोल नहीं समझना, उन्हें उठाना, क्योंकि घर का काम खुद हुजूर करते थे। अरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। घर का काम खुद सरकार करते थे, जब हमें करने में क्या है, मैं शर्म क्यों महसूस करना। अगर वक्त आया तो प्लेटा घर में इतने डालने बैठे समझो, अब वो बहू धोती गया कि ये बहू धोती गया कि ये बेटी धोती गई, बोल वहाँ टागले बैठे, कोई मोरी में घुसी, उन्हें सर्दी नाक पकड़ ले बाहर आ रही। अब उन्हें क्या करती, जीने तो रात दिन धो रही, कपड़े इन्हें धो रही, उन्हें धो रही, ये बात लेकर उसको इशू बना के घर में झगड़ा शुरू हो जाता। ये छोटी छोटी बात पे झगड़े को 2-2 हंडियां पकड़े, तो वो बाजू घर में रो हांडी बना ले, मैं अलग रहता हूँ तू अलग रहता हूँ, ये हमारा माहौल बन गया। खुदारा मुसलमानों, अपने घरों के माहौल को बदल डालो। अपने घरों में ये तय करो, हम हर घर का काम बांट लेंगे। सुबह में इन्हें ये करें, सुबह में इन्हें बर्तन धो ले, मैं झाड़ू मारूंगी, मैं फलाना काम करूंगी। घर में उठने से पहले उनके नाश्ता तैयार करने के लिए कोई चूल्हे के पास चली जाए। इस तरह कामों को तकसीम कर लो, सब काम बांट लो, फिर घर का काम भी होगा। अल्लाह अकबर, महल्ले में तुम्हारा नाम भी होगा, अल्लाह की रहमत आम भी होगी। खुदारा हमारा घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा को देखो, वो खातून जन्नत नबी की बेटी है, जिनके घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था। वो फातिमा जिनके घर में 8-8 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था। वो फातिमा जिनके घर में कपड़ों के अंबार नहीं थे, एक कपड़ा जब फटता था उसी को पैबंद लगाकर, उसी को पैबंद लगाकर सीते और उसी को पहनती थी फातिमा। रसूलुल्लाह की बेटी होकर फाहा कशी में जिंदगी गुजारने वाली वो फातिमा, ना इबादत में कमी आती है, ना रातों की इबादत में कमी आती है, ना बच्चों की खिदमत में कमी आती है, ना शोहर की खिदमत में कमी आती है। खातून जन्नत चक्की पीसती है, आपके हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, पानी भी लाकर पानी भी भरती है। कभी खातून जन्नत ने ये काम के बारे में, ये घर के काज के बारे में झगड़ा नहीं किया। फातिमा की सीरत पढ़ो मेरी बहनों, अल्लाह अकबर, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था। खातून जन्नत है, रसूलुल्लाह की बेटी है, जिनके दर पर कोई जाने के बाद खाली नहीं आया, उनकी चौखट पर जाने के बाद कभी कोई खाली नहीं लौटा। उस जमाने में भी नहीं लौटा, आज भी कोई खाली नहीं आता। जो भी सैयदों की चौखट पर गया है, आले रसूल ने उनकी झोली को मुरादों से भर दिया है, और आज भी भर रहे हैं। आज भी जाकर देखो, ये अल्लाह वाले जो सो गए हैं, बंदा नवाज देसी नवाज है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, जो भी चौखट पर गया बंदा नवाज उसकी झोली भर रहे हैं। गरीब नवाज के पास गया, वो गरीब नवाज भर रहे हैं। नवाली सरकार के पास गया, वो भी भर रहे हैं। सैयदों की शान है, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद भूखे रहकर दूसरों की तकलीफ को दूर करते हैं। अल्लाह अकबर। बनी सुलम के काफिले के कबीले का एक शख्स आया और आकर रसूलुल्लाह के दरबार में साहबा की मौजूदगी में आकर उसने हुजूर की शान में गुस्ताखाना कलिमात बोलना शुरू कर दिए। साहबा इकराम बैठे हुए थे, उमर फारूक को जलाल आया, म्यान से तलवार को निकाले, हमारे सामने हमारे नबी की शान की गुस्ताखी करता है और जिस तरीके के कलमे बोल रहा है, तलवार को निकाले तो हुजूर ने मना किया, उमर तलवार को अंदर कर दो। जैसे उमर ने नबी का इशारा पाया, तलवार को अंदर कर लेते हैं। आने वाला बदतमीजी से पेश आ रहा है, बद अखलाकी से पेश आ रहा है। नबी ने मारा नहीं, नबी ने अपने गुलामों को बोलकर उसे पीटा नहीं, बल्कि पीटने के लिए तैयार हुए तो रोक दिए। पता ये चला मोहम्मद आतंकियत फैलाने नहीं आए, आतंकियत को खत्म करने के लिए आए हैं। मुल्क में अमन का पैगाम देने के लिए, दुनिया में पैगाम देने के लिए रहमत लिल आलमीन तशरीफ लाए। मेरे रहमत वाले नबी ने कहा, ना उमर ऐसा ना करो, तलवार को म्यान में कर दो। जैसे तलवार अंदर गई, कहा कि तू जो बोलना चाहता बोल। उसने जो बोलना था बोल लिया। नबी ने उसे पलटा कर जवाब नहीं दिया, बस इतना मेरे नबी कहते हैं, देख मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल बनकर आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि तू दोजख में ना जाए, जन्नत में जाए। देर क्यों करता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। इतना कहते ही उसके दिल को ये जुमले लग गए
या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी शान में ऐसे जुमले इस्तेमाल किए, अगर आप चाहे तो मुझे टुकड़े टुकड़े करा सकते थे, मगर मैंने आपके अखलाक को देखा, आपके किरदार को देखा, अल्लाह अकबर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब उसके बाद वो रोने लगा। मेरे नबी ने कहा, रोता कैसे, आंखों में आंसू कैसे आ गए? उसने कहा, क्या बताऊं, मेरा जो कबीला है ना बहुत बड़ा है, उनमें सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं। कई दिन हो गए मेरे घर में खाना नहीं, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे बदन पे कपड़े तक नहीं, मुझे अपने घर तक जाने के लिए सवारी तक नहीं है। इतना सुनने के बाद नबी ने कहा, साहबा बैठे हुए थे, अली भी है, हजरत साद भी है, अबू हुरैरा भी है, अबू बकर भी है, पूरे साहबा बैठे हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, है कोई शख्स जो इसका सर ढांप सके? तो हजरत अली उठे, अपना अमामा निकालकर उसके सर पर रख देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, है कोई शख्स इसे ऊंटनी का इंतजाम कर दे? हजरत साद उठते हैं, अपनी ऊंटनी उसे दे देते हैं। अब उसके बाद मेरे नबी ने कहा, है कोई इसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाए? सारे साहबा की गर्दनें नीचे हो गई, आंखों में आंसू रवा है, रोने लगे। हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं सिलगा सरकार, हम कहां से खिलाएं? अगर काश आज अगर मेरे घर में कुछ होता तो एक नबी के इशारे से सब कुछ लुटा देता, मेरे घर में कुछ नहीं। साहबा रो रहे हैं। अब उसके बाद मेरे नबी ने सलमान फारसी को बुलाया, कहा कि अब ये जो यहां बैठे हैं, इसके अलावा जो मदीने में घरों में साहबा है, उनके घरों के दरवाजों को दस्तक दो, किसी के घर में कुछ खाने की चीजें हैं तो इन तक पहुंचा दो। हजरत सलमान फारसी उस नौ मुस्लिम को लेकर मदीने की बस्तियों में घूमते हैं, सबके दरवाजों को दस्तक दिए, सबके दरवाजों से ना की आवाज आई, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। तीन दिन तक जिनके घरों में चूल्हा नहीं सिलकता था, मगर नबी पर मर मिटने का जज्बा ऐसा था कि अगर हुजूर इशारा करते थे तो साहबा ये शिकायत नहीं करते थे, आखा हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, अगर मैं जंग को जाऊं तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? कभी साहबा ने यह सवाल नहीं किया। जब नबी ने बुलाया है, अपनी औलाद के साथ कुर्बान ही होते हैं, कुर्बान देते हुए नजर आते हैं, अपनी जान देते हुए नजर आते हैं। सलमान फारसी सबके घरों के दरवाजों को दस्तक देकर वापस लौट रहे थे। फातिमा का घर आया, सैयदा का घर आया, तैयबा का घर आया, ताहिरा का घर आया। दरवाजे को दस्तक दिए, आवाज आई, कौन? कहा कि सलमान फारसी हो। कहा किस लिए आए हो? कहा कि नबी ने भेजा है, एक शख्स है फला फला। सारी स्टोरी उन्होंने बयान की। खातून जन्नत की आंखों में आंसू आए, रोने लगे। बाबा का मेहमान है, मेरे घर आया, खाली कैसे भेजो? 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं सिलगा, पेट जाकर पीठ को लगा हुआ है, मगर बाबा का मेहमान आया है, फातिमा के घर आया है, आज खाली नहीं जाएगा। सलमान फारसी से सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा कहती है, मेरी बहनों, मेरी ये चादर ले जाकर शमून यहूदी के पास बेच डालो, इससे जो रकम आती है उसी से जौ खरीद कर लाओ, मैं सारे जौ की रोटियां बनाकर मेरे बाबा के मेहमान को खुश कर दूंगी। अल्लाह अकबर। वो चादर ले जाकर सलमान फारसी यहूदी शमून के पास रखते हैं। शमून में यहूदी ने फातिमा की चादर को अपने हाथ में लिया, बदन में करंट आ जाता है। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? कहा कि मोहम्मद की बेटी फातिमा की है, नबी की बेटी फातिमा की चादर है, किस लिए लाए हो? उन्होंने सारा वाकया बयान किया कि नबी के दरबार में एक शख्स ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुआ, उसको खिलाने के लिए फातिमा ने अपनी चादर बेच रही है, फातिमा अपनी चादर बेच रही है। इतना सुनते ही यहूदी रोने लगा, आंखों से आंसू आए। मैंने ज़बूर और तौरेत में जिनके चर्चे सुने थे, आज वो आंखों से देख रहा है, मोहम्मद भी हक पर है, फातिमा भी हक पर है, उनका दीन भी सच्चा है। मैं चादर बाद में बात करूंगा, पहले कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना दो, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना दो। जैसे
जैसे ही फातिमा की चादर को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उसके बाद उन्होंने चादर को सर पे रखा, एहतराम किया। ये किसी और की चादर नहीं, फातिमा की चादर है, नबी की बेटी की चादर है। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये चादर भी ले जाओ, ये रकम भी ले जाओ, और ये जौ का आटा, ये सब कुछ ले जाओ। ये सब लेकर तशरीफ लाते हैं, फातिमा को देते हैं। फातिमा ने आने वाले मेहमान को दिए तो कहने लगे कुछ आप अपने घर में भी रख लीजिए। कहा नहीं, जो नियत मैंने की थी ना मेहमान के लिए, वो सब मेहमान का ही है। क्या बात समझ में आ गई? इतनी गुर्बत में भी फातिमा ने नमाजों को नहीं छोड़ा, इबादत को नहीं छोड़ा। आज हमारी बहनों, तुम्हारे आंग भर को सोना चांदी, फ्रिज भर को अनाज, घर भर को थैले चावल के जवारी है, फजर पढ़ने को तैयार नहीं है। उठो फजर, और फजर की नमाज औरतें घर में पढ़े, मर्द मस्जिद को जाए। खुदा की इज्जत की कसम, 41 दिन कंटिन्यू फजर पढ़ने वालों को अल्लाह गरीब है तो अमीर बना देता। रोजी बांटने की तैलीम ज़ोहर में नहीं है, फजर में है। कब है? फजर में है। फजर जो पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता करता है, उसके चेहरे पे रौनक आती है, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर अता करता है, अल्लाह दुश्मनों के दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फजर की नमाज की पाबंदी करें, खास करके नमाज फजर पढ़ के देखो। जो नौजवान बेरोजगार हैं, वो रोजी के लिए तड़प रहे हैं कि अच्छी रोजी मिल जाए, वो नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, तू फजर का पाबंद हो जा, अल्लाह तेरे लिए रास्ते पैदा कर देगा। फजर को उठो। फजर एक ऐसी इबादत है, मैं आपको बता रहा हूं, जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ये बातें याद रहेगी। फजर के लिए जो उठेंगे ना घर के अंदर, घर में जैसे एक औरत अगर उठ गई तो बहन है तो भैया को उठाएं, बीवी है तो शोहर को उठाएं, माँ है तो बेटे को उठाएं, और अपने माँ बाप को सबको जगाएं, कहें कि फजर पढ़ो। बोलना हमारा काम है। अब अगर अमल नहीं करे तो इसके जवाब दे हम नहीं, वो खुद नहीं करने वाला फंसेगा। अगर हम जवाब नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को लेकर दोज़ख में जाएगी। कितने लोगों को लेकर जाएगी? एक औरत 4 मर्दों को लेकर दोज़ख में जाएगी। अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी? तो बंदी कहेगी मौला मेरा भाई तो नमाजी था, आबिद था, मगर कभी मेरे नमाज पढ़ो बोल को नहीं बोला। देखो ऐसा, उसको भी लेकर ठहरा करो बाजू में। फिर इसके बाद शोहर के बारे में बोलती, मेरे शोहर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, ये लाओ वलित लाते, वो लाओ वलित लाते थे, नमाज को अपे जाते थे, कभी मेरे नमाज के बारे में सख्ती नहीं करे उन्होंने, ऐसा उसको भी ठहरा कर दो। उसके बाद बेटा मेरे से बेपनाह मोहब्बत करता था, कोई गलत नजर उठाकर देखे तो उससे झगड़ा करता था, मेरी हिफाजत करता था, सब कुछ करता था, मगर नमाज खुद पढ़ता था, मुझे दावत नहीं दिया। इतना जब औरत हो शिकायत करने के बाद बेटे को भी खड़ा कर दिया जाएगा। बहन, भाई, शोहर, बेटा, बाप, 4 लोगों के साथ इस औरत को औंधा मुंह घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर करो। वो जहन्नम जिस आग का जिक्र सुनकर औलिया रोते थे, औलिया इकराम रोते थे, गौसे आजम रोते हैं, गरीब नवाज रोते थे, हत्ता कि हमारे नबी इतना रोते थे कि मुसल्ला भीग जाता था। आज उसी आग में उन लोगों को डाला जाएगा जो अपने घर में नमाज की दावत नहीं देते। खुदारा नौजवानों, अपने घर जाते ही पहले नमाज के बारे में पूछो, और औरतें भी नमाज पढ़े और मर्दों को भी ताकीद करें। अगर तुम फजर की नमाज पढ़कर आए तो तुम्हारे लिए आमलेट भी गेहूं की रोटी दाल को दे। तुम बोलना अरे ऐसा, पहले भागता हूं नमाज, दूध भी मिलता। अगर तुम्हें नमाज नहीं पढ़े तो मैं क्या भी नहीं पकाती, तुम किसको बुलाते, बुला बुलाओ। अगर ये जज्बा आया बोले तो फिर घर जाकर घर पूरा जन्नत बन जाता है। अच्छी बात है नहीं है? सब जने, माँ भी नमाज पढ़ रही, बेटी भी नमाज पढ़ रही, पोतरी भी नमाज पढ़ रही, पोतरा भी नमाज पढ़ रहा, नवासी भी नमाज पढ़ रही, नवासा भी नमाज पढ़ रहा, सब घर वाले नमाजी हो गए, सब नमाजी। बोले देखो ये जहन में रख लो, नमाजी के साथ साथ आशिक रसूल भी रहना। वैसे तो नमाजें बहुत मिल रही आजकल, वो नमाज खाली है जिस नमाज में गौस की मोहब्बत नहीं है। नमाज में मोहब्बत रसूल शर्त है, हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। तो आज कुछ लोग हैं जो खाली नमाज पढ़ो बोलते हैं। मैं पहले बोल दिया, हमारी नमाजें मोहब्बत रसूल से भरपूर रहती।
मोहब्बत गौस, मोहब्बत औलिया इकराम। नमाजों का एहतमाम जरूरी है कि जिस वली के उर्स में आए हैं, ये अल्लाह वालों का मामला ही ऐसा है कि जितने औलिया इकराम आप देखिए उठाकर तारीख में जो गुजरे हैं, उन अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो, हर वली ने ये कह दिया जहां जहां उनके आस्थाने हैं वहां अल्लाह का घर मस्जिद भी बनाई गई है। हर जगह आप देख ले, यहां से लेकर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह के रोजे के पास मस्जिद है, आप देखते चले जाए। इसी तरह आप आइए हिंदुस्तान के ताजदार गरीब नवाज के पास मस्जिद है, बंदा नवाज के पास मस्जिद है, महबूब इलाही के पास मस्जिद है, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह के लिए मस्जिद है। आप अगर हजरत रुकनुद्दीन तौला के पास जाओ मस्जिद मिलेगी, शेख जुनैद रोजे के पास जाओ वहां भी मस्जिद मिलेगी, खलीफतुर रहमान बाबा के पास जाओ वहां भी मस्जिद मिलेगी, अगर आप नौवाली सरकार की दरगाह जाओ वहां भी मस्जिद मिलेगी। हर जगह जहां भी जाओ वली का जहां आस्थाना होता है वह अल्लाह का घर मस्जिद भी हुआ करती है। अल्लाह वाले बता रहे लोगों पहले नमाज पढ़ना, बाद में वली की जियारत करना। अगर ये काम करना हम शुरू कर दें, एक वली की जियारत, एक अल्लाह का घर, बोलो जी सुभान अल्लाह। एक वली की जियारत, एक थक गए क्या? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर से आवाज नहीं आ रही, सब मिल के बोलो माशाअल्लाह। देखते देखते गुलामों का मजमा कसीर हो गया। जितने हमारे नौजवान आए हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है नमाज की पाबंदी करो। बोलो जी सब मिलकर, नमाज मत छोड़ना। क्योंकि नमाज, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिस दिन हम मरेंगे ना, जिस दिन हमें मरेंगे ना, उस दिन हमारी मैयत को घर से निकाल कर गस्साल आएगा गुस्ल देने के लिए, तख्ता बिछाएंगे, बेर का पत्ता लाएंगे, हांडी में पानी उबलता रहेगा, जब नहलाएंगे माँ रोएगी, बहन रोएगी, जब मैयत को उठाकर कफन देकर सुरमा लगाकर जब जनाजा लेकर जाते ना, औरतें ढेलिस के पास रोते हुए कहती है मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। जब उसे ले जाते ना, खबर में छोड़ते रहे तो उस वक्त मुर्दा जब कब्र में तन्हा जब उतारते रहते ना, उसे उस वक्त खौफ थर थर कांपते रहता है, रोता है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनते, उसका कांपना कोई नहीं देखते, अंधेरे में उसे छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त एक नूर आता है, वो नूर जैसे अंदर आया तो वो नूर को देखकर कहता तू कौन है? तो वो नूर कहता मैं तेरी नमाज हूं। बोले सुभान अल्लाह, मैं तेरी नमाज हूं। नमाज, अरे तूने मेरे लिए दुनिया में जिनको छोड़ा था, आज उन्होंने तुझे लाकर यहां छोड़ा, मगर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे नहीं छोड़ा दुनिया में, नमाज को छोड़े थे क्या? छोड़े अब तक, अब नहीं छोड़ेंगे। बोलो जी नहीं छोड़ेंगे। औरतें घर में पाबंदी करें। देखो तुम्हें मरे तो सास खबर में नहीं आती, सास मरी तो बहू खबर में नहीं जाती। तुम्हारे को जाना है, नमाज को लेकर जाओ। जब कोई आए ना आए, नमाज नूर है और वो खबर में आकर कहेगी मुर्दे से तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू ऐसा शख्स है मेरे लिए दुकान छोड़ा, मेरे लिए बिस्तर छोड़ा, मेरे लिए नींद को छोड़ा, मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, मगर तू मुझे नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। नमाज कहेगी अब तुझे सब छोड़े, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, खबर में साथ रहूंगी, सवालात के जवाबात में साथ रहूंगी, खबर के अंधेरे को दूर करूंगी, रोशनी बनकर साथ रहूंगी। क़यामत के दिन उठेगा जब भी तेरे साथ रहूंगी, पुलिस रात पर हाथ पकड़ कर चलाऊंगी। मेरे नबी ने कहा नमाजी को नमाज पुल से पार करा देती है, और मेरे नबी ने कहा नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज कहेगी तुझे डरना नहीं, जब तक मैं ना हो ताला भी नहीं खुलेगा, मैं ताला खुला के जन्नत में लेकर जाने वाली हूँ। तो गोया नमाज पढ़ो, यही नमाज जन्नत की कुंजी है। तो जब हमें कुंजी लेकर साथ जाएंगे तो डर किस बात का, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करें, वलियों की जियारत करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ है। फिर कभी मौके पर बयान रखो, इंशाअल्लाह आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मेरे परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, जो कुछ भी बयान किया गया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।